chapter 9 to chapter 10 sustainable development. Yes, start reading. Concept of environment. Environment is defined as all those conditions and their effects which influence human life. It is the sum total of surroundings and the totality of resources that affect our existence and the quality of our life. According to the Environment Protection Act 1986, environment includes water, air, and land, and the interrelationships which exist among and between water, air, land, and human beings and other creatures, plants, microorganisms, and properties. तो देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑल द कंडीशंस एंड इफेक्ट जो कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, अपने आसपास जो भी वातावरण है दैट इज आवर एनवायरनमेंट, सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स सो इन विच वी लिव एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड, तीनों चीजें आ गई इसके एंड इंटर रिलेशनशिप्स और आपस में इनका जो रिलेशन है एंड हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन बीइंग और हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब मिलाकर एनवायरनमेंट कहलाता है। The above definition suggests that there are physical as well as living elements of environment. Physical एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग यानी कि बायोटिक दोनों एलिमेंट होते हैं। Physical elements include air, water, land, soil, climate, mountains, minerals, and all other resources which nature has provided to us as a free gift. सेकंड पॉइंट है कि फिजिकल एलिमेंट का मतलब है ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें कोई लाइफ नहीं है, लाइक वाटर, लैंड, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल, ऑल द रिसोर्सेज दीज आर which we get as a free gift. These are the physical elements which we get from environment. Living elements include all kinds of living creatures like birds, plants, and animals, forests, fisheries, etc., which impact human life. और living elements में आएंगे birds, plants, those who have life, animals, forests, fisheries, etc. Non living को बोलते हैं abiotic और living को बोलते हैं biotic. Second. Significance of environment. Following observations highlight the significance of environment. First, environment offers resources for production. Environment includes physical resources, minerals, wood, water, soil, and others which are available to us as a free gift of nature. These resources are used as inputs for production. In fact, production is simply the process of conversion of natural resources into useful things. एनवायरनमेंट से हमको रिसोर्सेज मिलती हैं प्रोडक्शन के लिए। क्या क्या रिसोर्सेज मिलती हैं? मिनरल्स, वुड, वाटर, सॉइल एंड other resources. These are the inputs for production. What is production? Production means resources को useful things में convert करना, raw material को finished goods में convert करना। ब्रैकेट में बॉक्स में आपको दे रखा है there are two types of resources, renewable and non renewable. तो नाम से ही जाहिर है renewable को बोलते हैं कि वापस रिप्लेनिश हो जाएंगे, वापस बन जाएंगे एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड एंड सी एनिमल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आसानी से दोबारा नेचर नहीं बनाती। उसके एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Second, environment sustain life. Environment includes sun, soil, water, and air, which are essential ingredients for the subsistence of life. Absence of these elements of environment implies the end of life. सेकेंड सिग्निफिकेंस है एनवायरनमेंट की कि बिना एनवायरनमेंट के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एनवायरनमेंट से हमको सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी है और जिंदा रहने के लिए जरूरी है, दैट इज एयर, वाटर एंड लैंड। थर्ड, एनवायरनमेंट assimilates waste. Production and consumption activities generate waste mostly in the form of garbage. Where does it go? It is absorbed by the environment. एनवायरनमेंट वेस्ट को अपने आप में एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं जिस तरह वेस्ट जनरेट होता है तो वापस डीकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। बट इसकी एक लिमिट होती है, अगर हम जरूरत से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको एसिमिलेट होने में, उसको डीकम्पोज होने में टाइम लगेगा और उससे पॉल्यूशन फैलेगा। Fourth, environment enhance quality of life. Surroundings include rivers, oceans, mountains, and deserts. Man enjoys these surroundings, enhancing the quality of life. एनवायरनमेंट से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है बिकॉज नेचुरल सीनरीज, रिवर, ओशन, माउंटेन दीज अफेक्ट आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Third, environment cycle.
practice better if we understand these two terms. First, carrying capacity of environment. It refers to the state of balance between the rate at which natural resources are exploited and the rate at which these resources are regenerated, implying that the resources and endowment remain intact. In other words, carrying capacity permits exploitation of resources only to the extent that the total resources and endowment does not deplete or it does not diminish but remains intact. एनवायरमेंट क्राइसिस को समझने के लिए पहले आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। पहला है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट का मतलब है कि हम कितना मिनरल, कितना रिसोर्सेज एनवायरमेंट से लें जिससे कि वो वापस बन सके। तो हमें उसको जो रेट है हमारी एक्सप्लोइटेशन की वो बैलेंस में रहनी चाहिए, मतलब जितना एनवायरमेंट वापस बना सकता है उतना ही हमको कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड वुड, और हम सारे जंगल को एक साथ काट देंगे, सारे पेड़ों को एक साथ काट देंगे, तो दोबारा एक पेड़ को बनने में कितना साल लगेगा? कम से कम 10-15 साल। तो जब तक वुड मिलेगी तो आपने क्या करा? एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया। तो आपकी जो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। Second, absorptive capacity of environment. It refers to the ability of the environment to absorb waste occurring due to production and consumption activities in the economy. सेकेंड चीज है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट कितना एब्जॉर्ब कर सकता है वेस्ट। हमने भी पढ़ा ना, एनवायरमेंट एक्यूमुलेट्स वेस्ट, और मैंने आपको बताया लिमिट होती है एनवायरमेंट की कि वो कितने टाइम में वेस्ट को डिकम्पोज कर सकता है और किस तरह के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर सकता है। जैसे प्लास्टिक को कभी एक्यूमुलेट नहीं कर सकता एनवायरमेंट, तो वो एक पॉल्यूटिव प्रोडक्ट है। तो दो चीजें हमने पढ़ी, कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब यही है कि हम कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, देयर विल बी एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर हम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे, देन देयर आल्सो विल बी एनवायरमेंट क्राइसिस। Environmental crisis occurs when carrying capacity of the environment is challenged or exceeds to excessive exploitation of natural resources, or when regeneration or when generation of waste exceeds the absorptive capacity of the. सेम बात है जो मैंने कही। क्या कहा इसने कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट करें या फिर हम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट जनरेट करें, दैट इज नॉन एज एनवायरमेंटल क्राइसिस। Environmental crises manifest themselves in the form of global warming, climate change, ozone depletion, besides the depletion of certain resources. हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है नहीं हो रहा? हमें कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट का चेंज होना, बिना मौसम बरसात होना, ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, ये सब चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। कई जगह बाढ़ आ जाती है, कई जगह सूखा पड़ जाता है, हरिकेन आ जाते हैं। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। It is a serious threat to the availability of production resources to the future generation, implying that the speed or pace of growth today ultimately would become unsustainable, threatening the quality of life of future generations. The world today is facing environmental crisis of unprecedented levels. There is a huge pressure on environment on account of rising population and affluent consumption and production patterns. So environmental crisis will cause a serious threat, and it will also affect the sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development means what resources we are getting, the same resources should be available to the future generation also. So we should consume in such a pattern that it does not make the things unavailable. तो हमें उसको उतना ही कंज्यूम करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी उतना ही मिले जितना हमको मिला। मगर एनवायरमेंटल क्राइसिस अगर होगा तो उनको उतना रिसोर्सेज नहीं मिलेगी कि हमको मिल रही है। दैट इज द पॉइंट। Environmental crises have high opportunity cost. Opportunity cost is a sacrifice made for enjoying an opportunity. This may be categorized as avoidable and unavoidable. It is unavoidable when, for example, wheat is grown on a piece of land in place of rice. Loss of output of rice is unavoidable opportunity cost of producing wheat. Opportunity cost is avoidable when, for example, excessive smoke is emitted because of the poor maintenance of vehicles. तो कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है अवॉइडेबल, कुछ होती है अनअवॉइडेबल। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था 11th के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस मेड फॉर द प्रोडक्शन। मैंने अगर किसी खेत में बीज उगाया तो मैं राइस नहीं उगा पाया,
तो लाइफ की जो वैल्यू है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज अनअवॉइडेबल। आप एक जमीन में एक ही चीज उगा सकते हो ना, सामने जो चीज नहीं उगाई दैट इज अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी हो। मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये भी होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप अगर फैक्ट्री चला रहे हो और उससे स्मोक एमिट हो रही है, दैट इज आल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज वहां पर करना पड़ता है, दैट इज अवॉइडेबल। आप उस स्मोक को ट्रीट कर सकते हो, ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हो, चिमनी लगा सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे अवॉइडेबल। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज अवॉइडेबल, कंट्रोल नहीं कर सकते अनअवॉइडेबल। Environmental practices have high opportunity cost because of the following reasons. First, the unsustainable development practices have polluted water bodies and dried up some rivers and aquifers, which has made water economical. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एनवायरमेंटल क्राइसिस की। कुछ रिवर्स को हमने देखा है जो पहले के ज़माने में थी, अब वो रिवर्स सूख गई है, खत्म हो गई है, उनको कोई एविडेंस नहीं है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। Second, intensive and extensive extraction of resources has exhausted some of the vital resources, and now huge amounts of finance need to be devoted towards research and development to explore new resources. हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज करके कई मिनरल्स क्लोज टू एक्सटेंशन है और कुछ मिनरल्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो अब उसके लिए हमको हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर्स करानी पड़ रही है नई रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए। Third, degradation of environment has increased the cost of maintaining a healthy lifestyle. Air and water pollution have resulted in increased incidence of respiratory and waterborne diseases. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के कारण हमारी लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ रहा है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी एंड वाटरबॉर्न डिसीजेज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल। Fourth, due to increasing emission of greenhouse gases at a rate of unprecedented rate of climate change, financial commitment of the government have risen to unprecedented levels. There is increasing emissions of greenhouse gases. What are greenhouse gases? Carbon dioxide, carbon monoxide and chlorofluorocarbon. तो इन सब ग्रीन हाउस गैसेज के कारण एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ओवरऑल एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस है वो पिघल जाएगी और पूरी पृथ्वी पानी में डूब सकती है एज पर एन एस्टिमेट। तो हमें क्या करना है,